Well, the nations of this world are looking for leadership. इस दुनिया के राष्ट्र अगुवेपन को ढूंढ रहे हैं। They are looking for direction. वह अगुवाई को मांग रहे हैं। Somebody to lead them. कोई उनकी अगुवाई करे। The people are looking for somebody to give them hope. लोग इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आशा दे। The people are crying out for somebody to release them from their agony. लोग पुकार रहे हैं कि कोई तो उन्हें पीड़ा से उन्हें आजाद करे। You are the answer to what the world is searching for. आप वो उत्तर है जो दुनिया ढूंढ रही है। My friends, मेरे मित्रों, today God has chosen to make you a father to the people. आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि लोगों के लिए पिता ठहराएं। He's going to train us and make us a father. आज वो हमें सिखाएंगे और शिक्षा देंगे पिता के विषय में। And as per Genesis 17:4, उत्पत्ति 17:4 के अनुसार, as for me, this is my covenant with you, says the Lord. देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। You will be a father to many nations. इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। Father of many nations. बहुतों का मूल पिता। Why should I be a father? मैं क्यों एक पिता बनूं? Well, the nations of this world are looking for leadership. इस दुनिया के राष्ट्र अगुवेपन को ढूंढ रहे हैं। They are looking for direction. वह अगुवाई को मांग रहे हैं। Somebody to lead them. कोई उनकी अगुवाई करे। The people are looking for somebody to give them hope. लोग इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आशा दे। The people are crying out for somebody to release them from their agony. लोग पुकार रहे हैं कि कोई तो उन्हें पीड़ा से उन्हें आजाद करे। God is watching all of that. परमेश्वर उन सभी को देख रहे हैं। And He is also looking for someone who will bring His will and His answers to the people. उसके उत्तर और उसकी योजना को पूरी करने के लिए वो मनुष्य को ढूंढ रहा है। An answer for all the chaos in this world. इस दुनिया के हर एक समस्याओं के बीच में परमेश्वर के उत्तर। For all the troubles in this world. इस दुनिया के हर एक पीड़ाएं। Leaders who will rise and dispel the dark powers with God's light within them. परमेश्वर की रोशनी उनके भीतर होने के द्वारा जो इस संसार के अंधकार को दूर करेंगे। By bringing a clarity through the light of Christ. मसीह की रोशनी के द्वारा इस संसार में स्पष्टता को लाकर। Someone who says, I will take care of you. कोई तो कहेगा मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। That is a father's spirit. और यही तो पिता का आत्मा है। You are the answer to what the world is searching for. आप वो उत्तर है जो दुनिया ढूंढ रही है। He has a place and a people prepared for you to show the light of Christ to. आपके लिए उसने लोग और जगह तैयार रखा है ताकि आप मसीह की रोशनी को प्रकट करें। We can choose to be one among that crowd who is complaining and crying out. हम उन भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं और पुकार रहे हैं। Or we can choose to be the one who rises up and brings the answers to this world. या तो फिर हम उस भीड़ से अलग हटकर ऐसे व्यक्ति बने जो उठकर खड़ा हो और जवाब दे। There is so much power in the Lord. परमेश्वर में बड़ी सामर्थ है। So much that He has will and plan. और बहुत कुछ जो उसकी योजना में है। If only we would stand in that gap. सिर्फ हमें मध्यस्थ के रूप में खड़े होना है। Have a joyous walk with the Lord. परमेश्वर के साथ आनंद पूर्वक एक चलन And bring Him to this world. और उसे दुनिया में प्रकट करें। That is what He's calling us for. और इसलिए तो वह हमें बुला रहा है। Today, first the Lord says, I will become a father to you. पहली बात परमेश्वर आज कहते हैं कि मैं तेरा पिता बनूंगा। I will show you my Father's love. मैं जो तुम्हारा पिता हूं अपने प्रेम को प्रकट करूंगा। So that you know what it is to have a father. ताकि तुम ये जान पाओ कि पिता के प्रेम को होना या पिता होना क्या है। And so all we need to do is to firstly seek Him. और जो हमें करना है पहली बात उसे ढूंढना है। To become a father, we seek God and have a personal devotion to Him.
पिता होने के नाते हमें उसे ढूंढना है और एक व्यक्तिगत संबंध होना है। It is so important. यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। In Daniel 6:10 we read that Daniel had a spirit of prayer. दानियल 6:10 में हमने देखा कि दानियल के पास परमेश्वर की आत्मा थी। He loved to pray वो प्रार्थना करने से प्रेम करता था and he was connected to the Lord in और prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। And we pray in the morning. और हम सुबह प्रार्थना करते हैं। We devote ourselves to the Lord in the morning. सुबह हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं। Mark 1:35 says, मरकुस 1:35 कहता है, early in the morning while it was still dark, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले Jesus got up and slipped out to a solitary place to pray. यीशु मसीह उठकर एक जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगे। He prioritized to pray to the Heavenly Father. यीशु मसीह के लिए एक अत्यंत मुख्य काम था परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना। He considered it the most important thing to be the first act of the day. और दिन के पहले काम के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी प्रार्थना करना उनके लिए। Without it, it is impossible to move forward and be a father. और बिना इसके बहुत कठिन था आगे बढ़ना और पिता बनना है। And when you sing to Him, the presence of God fills you. और जब आप गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर जाते हैं And God's Spirit starts leading you into meditating His word and और praying. परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में। We need to listen and seek out to Him because He gives us His revelations for the day. हमें बैठकर उसकी ओर उसकी बातों को सुनना है क्योंकि वह हमें प्रकाशन से भरपूर करता है। On what Sam is to do that day. सैम को इस दिन में क्या करना है, What Sam has to protect himself from. सैम को आज किन बातों से अपनी सुरक्षा करना है, What Sam is to whom he has to go to. और सैम को आज कहाँ जाना है, What all he has to accomplish. और किन बातों को पूर्ण करना है। He reveals it mercifully to us. बड़ी दया के साथ वो प्रकट करता है And we are so glad in doing all those और हम आनंदित होते हैं उन बातों को करने के लिए। things. We feel so fulfilled. हम परिपूर्ण हो जाते हैं। My father wakes up early in the morning, मेरे पिता भोर को उठ जाते हैं, 3 o'clock in the morning. 3 बजे भोर को, And he says that a fear grips him right as he wakes up. और जैसे वो उठते हैं वो कहते हैं कि एक भय आ जाता है। Fear about all that God has given in his life. भय उन बातों के विषय में जो परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है। What am I going to do to carry the people, मैं क्या करूं कि इन लोगों को लेकर चलूं, to carry the family, परिवार को लेकर चलूं, to overcome my troubles, अपनी समस्याओं पर जय पाऊं, to be strong without sin, पाप के बिना मजबूत बनूं, to bring your power to the people. ताकि आपकी सामर्थ को लोगों तक लेकर जाऊं। Will I see it today also, क्या Lord? मैं आज भी इसे देखूंगा Will you परमेश्वर? come with me today also, क्या Lord? आज आप मेरे साथ रहेंगे With all the इन responsibilities, सभी जिम्मेदारियों के साथ? I cannot fail today. मैं आज नहीं हार सकता। I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है। I need you. That is the passion and the need with which we cry to Him. और यही तो हमारी आवश्यकता और चाहत है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पुकारते हैं। Don't treat Him cheaply. उसे बड़े निचले स्तर से ना देखें। Fall at the feet of the Father and cry to Him. पिता के चरणों में गिरकर उसे पुकारे, Beg Him for mercy. दया के लिए उससे मांगे। We read that Daniel prayed 3 times a day and praised the Lord. कि दानियल 3 वक्त प्रार्थना करता था और उसकी स्तुति करता था। He praised the Lord. वो परमेश्वर की तारीफ करता था। Protects your heart with the joy of the Lord. परमेश्वर के आनंद के द्वारा ये आपके हृदय को रक्षा करेगी। And finally, when you go to sleep, और अंत में जब आप सोने जाते हैं, praise Him for all that He has done that day. परमेश्वर की तारीफ करें उन बातों के लिए जो पूरे दिन उसने आपके लिए किया। Let your prayers turn into praises. आपकी प्रार्थना तारीफ और स्तुति में बदल जाए। As you thank Him more and more and जैसे more, आप उसे धन्यवाद देते हैं अधिक और अधिक, His grace will only increase. उसका अनुग्रह तो बढ़ता चला जाएगा His power will come exceedingly. और बड़ी प्रतापी रूप में उसकी सामर्थ आएगी। As you've thanked Him and filled the heart of your Father with
smiling and joy over you. जैसे आपने परमेश्वर को धन्यवाद देके उसके हृदय को आनंद से और मुस्कुराहट से भर दिया है। This is how we commune with God and become one with Him. और इसी प्रकार से हम परमेश्वर से बात करते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं। Praying and meditating upon Him and praising Him throughout the day. पूरे दिन उसकी तारीफ करते हुए, प्रार्थना करते हुए और मनन करते हुए। Then nobody can shake you. तब कोई हमें हिला नहीं पाएगा। You will be prepared as a strong father. एक मजबूत पिता के रूप में आप तैयार हो जाएंगे। Shall we one moment commit ourselves to have this promise of being a father to the people being fulfilled? क्या एक क्षण के लिए अपने आप को तैयार कर कर समर्पण करें कि यह वाचा जो परमेश्वर ने हमें पिता बनाने के लिए बांधी है उसे पूरा We करें। need you, Holy Spirit, आपकी आवश्यकता है to पवित्र make us आत्मा, arise and shine ताकि हम उठकर प्रकाशमान हों। as your grace is being laid upon your children जैसे आपका अनुग्रह आपके संतानों के ऊपर उंडेला जाता है, to mold their heart, ताकि उनके हृदय को परिवर्तित to करे, repair their heart, ताकि उनके हृदय को बनाए, to churn their heart ताकि उनके हृदय को परिवर्तित as a करे father. एक पिता के रूप में। First, to be filled with the heavenly Father's love. पहली बात कि पिता के प्रेम से भरते जाए जो स्वर्गीय पिता है। Let us taste your love, Lord. परमेश्वर हम आपके प्रेम को चखे। We don't know how to be a father by looking at this world, इस दुनिया को देखकर हमें नहीं मालूम कि हम पिता के रूप में कैसे स्थापित but हो, help us to be a father looking at you, लेकिन हमारी सहायता करे कि हम पिता के रूप में बने, आपको देखकर, experiencing you. आपको अनुभव करने के द्वारा। We dedicate our hearts for that one more time. एक बार फिर से अपने हृदय को समर्पण करते हैं। Use us, O God. हम इस्तेमाल करें, Use us, O Lord. हम इस्तेमाल करें Let us परमेश्वर। bring your signs, wonders, and your miracles. अपने चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म को हमारे द्वारा प्रकट Let us करें। be your hope in this world. आपकी आशा को इस दुनिया में हम प्रकट करें। They need your children, Lord. आपके बच्चों की आवश्यकता The है। world is crying out for them. यह दुनिया तो पुकार रही है। Prepare them and send them, O God. उन्हें तैयार करें और भेजें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Shall we just thank Him for what He has bestowed upon us now? धन्यवाद दे परमेश्वर को जो उसने हमारे ऊपर उंडेला For है, helping us see the Father's love in His heart. हमारी सहायता करने के लिए कि हम परमेश्वर पिता के प्रेम को देखें And for empowering us with His grace. और इस अनुग्रह के द्वारा हमें सशक्त करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य मित्रों, through the television ministry of Jesus Calls and social media ministry of Jesus Calls, millions have experienced the light of the Lord and have experienced miracles. यीशु बुलाता है कि टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के कार्यक्रम के द्वारा लाखों लोगों ने परमेश्वर की ज्योति और आश्चर्य कर्म को अनुभव किया है। I know you too have been blessed. और आप भी इससे आशीषित हुए हैं You can bring these blessings to those millions. और आप लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। The best way is to sponsor or co-sponsor a TV program. एक बेहतर तरीका है कि आप किसी कार्यक्रम के प्रायोजक या सह प्रायोजक बन सकते हैं। On your birthday or the birthday of your family members, अपने जन्मदिन पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर, or on a wedding anniversary in your family, या फिर विवाह के वर्षगांठ के अवसर पर, or on a memorial day of your loved one. या फिर अपने किसी प्रियजन के स्मृति दिवस पर। When you sponsor the TV program जब आप इन कार्यक्रम के प्रायोजक बनते हैं or a social media program, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रोग्राम है, I will pray for you with your photographs on the screen if you desire, and the prayer will be sent to you also with thousands praying along with me for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपकी फोटो को स्क्रीन पर दिखाकर, यदि आप चाहते हैं, और साथ ही साथ लाखों और लोग आपके लिए प्रार्थना If करेंगे। you desire, we will pray on television or we will send you the recording of the prayer to यदि you. आप चाहते हैं तो हम टीवी पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और नहीं तो हम रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। But you'll be a blessing to लेकिन आप millions. लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Here's how you can sponsor or co-sponsor a TV program or be a TV club partner every month. यहाँ बताया गया है कि आप किसी टीवी कार्यक्रम को कैसे प्रायोजित या सह प्रायोजित कर सकते हैं, या फिर आप हर महीने टीवी क्लब के भागीदार बन सकते हैं। आप अपने धनराशि को इस पर्दे पे दिखाए गए QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं, या फिर
www.jesuscalls.org के द्वारा भी भेज सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए 9500127277 इस नंबर पर संपर्क करें या फिर tvs@jesuscalls.org से भी संपर्क कर सकते हैं।